नाउ विथ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन HR, हमने बहुत सारी बातें की हैं, हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं. आज की जो कन्वर्सेशंस है ना, दे आर गोइंग टू हिट यू अ लिटिल डीपर. आज जितने भी लोग आए हैं इधर, कितने लोग फेमपैक्ट आए थे अर्लियर दिस मंथ? How many people were there? So FEMPACT was a policy dialogue platform जहाँ हमने आज का conversation शुरू किया था. Domestic violence policy, financial literacy, इस तरह के topics पे बात करेंगे. आज हम उनको भी cover करेंगे. हम neurodiversity को cover करेंगे. We're going to be covering those things जो जनरली आपके कन्वर्सेशंस में आता नहीं है. एंड ना सिर्फ हम अपने अमेजिंग पैनलिस्ट के साथ बात करेंगे इसके हवाले से. वी बीन टॉकिंग इनसाइड. आई नो दैट दे हैव इनसाइट्स दैट आर जस्ट अमेजिंग. I'm really looking forward to for them to bring their expertise over here. But more than anything else, जितने भी लोग इधर पहले भी आ चुके हैं हमारे सेशंस में, all of you are invited as part of the discussion. I want everybody to be fully engaged over here. And सोना मना है बिल्कुल, अभी से बता दिए. राइट नाउ नींद के झोंके आएंगे, हम चिल्लाना शुरू करेंगे. सो राइट नाउ थैंक यू सो मच फॉर coming over here. A very big thank you to Mr. Hassan Raza, coming all the way from Lahore, for bringing all of you here together. Tech Titans always does amazing sessions. Thank you, and a very big round of applause for him, please. Again, we would not have such sessions if it was not for the vision of the company that we are sitting with today right now. Part 2 Progress provides free HR education, which is very much the requirement today. And every single time they do it, every single time they bring a whole new topic, and they show you that HR is not a very basic function. आप जो काम कर रहे हैं ना, वो सबसे important काम है एक पूरे कंपनी को उठाने का. उनके जो लोग हैं, उसकी जो ब्लड है, you are the circulation of your company, right? To understand all of that, that's why we must thank Mr. Ibrahim over here. Every few weeks, he does these sessions in Lahore, he does these sessions in Karachi, and he makes sure that हमारी जो standard है ना, it keeps getting better and better. Today's conversation is going to be a little global. So let's keep our mindsets in that direction. So thank you so much, Nafisa. Thank you so much, Hena, Aisha, Asif Saab, for coming over here, being part of this. अब आप अपने अपने organizations में you're in such incredible positions, and you are in that position of power where you can influence and make decisions. A lot of people over here are from different positions. When we come in with our perspectives, we come in teaching everyone to what you can do to improve. हम शुरू करेंगे आज इस साल के सबसे हॉट टॉपिक पे, डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी. ओके, अब थोड़ी देर पहले आप भी आई थी फेमपैक्ट पे, एंड यू वर देयर ड्यूरिंग द सेशन दैट वी डिड. डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी जब हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि पता नहीं कहाँ हम अपना हाथ डाल रहे हैं, प्राइवेट मैटर है. फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू बिगिन विथ है, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट अ प्राइवेट मैटर, इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी. It's सीधा recognized as a crime. So in the workplace, like any other crime would not be tolerated, like stealing would not be tolerated. The same way, violence should also not be tolerated. If it is happening to somebody inside your employee for a workforce, और आपके पास resources हैं to be able to help them, then it becomes your responsibility to actually help them. That is what we're going to be touching here today. Thank you so much, Hena, for coming. हमारे जो labor laws हैं, they are fully in compliance with ILO's conventions. और ILO का एक convention है 190. उसमें clearly ये state किया है कि domestic gender-based violence can impact employment. It can impact workplace safety. It can impact productivity and well-being. जो घर पे मार खा रहा हो, वो किस तरह आके productive होगा आपके काम पे. ओके, हम कोई हमें डांट दे तो हम ऑलरेडी we feel so like, you know, downtrodden, हमारी motivation खत्म हो जाती. Imagine going through that. So lost employee morale, lost employee productivity, that is what ILO recognizes. Now in 2026 we're still struggling with implementing the workplace harassment policy. हम वो नहीं कर पा रहे, तो domestic violence आगे की कहानी हो गई है. This we know is going to impact employee safety. It will also have a trickle down effect on society. तो अभी आपने अपने लोगों को एम्पावर कर दिया, वो लोग आगे जाके लोगों को एम्पावर करेंगे, ये कन्वर्सेशन आगे शेयर होगी, आपकी CSR डिपार्टमेंट अडॉप्ट करेगा. दैट्स हाउ यू कैन हैव अ मच बिगर इम्पैक्ट थ्रू द डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी. नाउ सबसे बड़ा सवाल उठता ये है, आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस तरह अप्रोच करते हैं with this policy to get it adopted. By the way, Hira is one of the first adopters of the domestic violence policy in Pakistan. इस पे तो तालियां बजनी चाहिए. Yes. इन्होंने हमारे साथ प्लेज किया है. सो यस, हाउ वुड यू गो टू योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड थैंक यू इब्राहिम एंड ज़ैनब फॉर हैविंग मी हियर.
डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी के हवाले से जो आपने बात की, एक बात आपने बहुत खूबसूरत की कि डोमेस्टिक वायलेंस का जब ख्याल आता है तो लोगों के जहन में आता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, ये एक पर्सनल मैटर है। बट जहाँ आप हर तरह की डिफरेंट नीड्स की बात करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की हर तरह से ख्याल रखते हैं, आजकल तो बहुत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, वेलबींग का कॉन्सेप्ट है, टाइम्स हैव चेंज्ड। व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग एंड नाउ वेयर द अदर पीपल आर वर्किंग, जो हमारे यंगस्टर्स हैं काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पूरा जहान खुला हुआ है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती रहे, उनका बिजनेस रिजल्ट अच्छा आता रहे, उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह से उन्होंने कुछ जगह अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा इन्फोर्स करके आपको हरासमेंट पॉलिसी का एक एक्ट जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाना पड़ा है। ज्यादातर कंप्लाइंस से ही जी जी, लोग चेंज ये करता है गवर्नेंस अनफॉर्चुनेटली। प्रायोरिटी बन जाती है। ओके, लोग क्या कहते हैं डंडे की जोर पे कौम चलती है बेसिकली। दैट्स वेयर वी आर स्टैंडिंग, राइट? रेगुलेशन। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोग सिर्फ वही चीज़ करना चाहते हैं, वो स्टिक एंड कैरेट वाला एक कॉन्सेप्ट होता है ना। सो हम ज़्यादातर स्टिक के पीछे चल रहे होते हैं। हम लोगों ने स्माइल ग्लोबल में सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू शेयर, और ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए भी है। लीगल एड सोसाइटी की तरफ से हमने 5 लॉयर्स को अपने पेरोल पे हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। ऑल द क्लाइंट्स दैट दे डील, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट्स ऑल प्री ये आपका CSR में आ गया। यस यस। उससे लास्ट ईयर जो हमने किया था, इट वाज ओनली SGBV केसेस, सेक्सुअल जेंडर वायलेंस बेस्ड केसेस, बट दिस ईयर वी हैव इंक्लूडेड डोमेस्टिक वायलेंस केसेस एज वेल। और वो कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर आना चाहेगा तो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन वेलकम। इससे एक फ़ायदा ये है कि हमारे एम्प्लॉयज़ में वो कंफर्ट है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई इस ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, अब्यूज़ से गुजर रहा है, तो उसको खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है। दैट पर्सन डजंट हैव टू लुक फॉर कॉर्नर और अ पर्सन कि मैं किस से बात करूँ। वो HR में आकर बात कर सकता है, knowing that if we are helping people who are not even part of the organization, we would be more than happy to look after our employees in that aspect. ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला एक पूरी कहानी होती है ना। हम सब ने इमोशनल इंटेलिजेंस सेशंस किए हैं, NLP कितने लोगों ने किया है ओवर हेयर। So we talk about this. So it's a very obvious foregone conclusion कि domestic violence policy should not be a taboo. It Yes. should be a natural evolution of the Harassment at Workplace Act. अभी 21 companies ने already pledge कर दिए हैं to be part of this, and most of these companies are local. By the way, ये सोचना है सिर्फ MNCs का ये एक mindset है, it's not. Local Actually ये organizations local mindset है, and these are local leaders, and every one of these companies has a male leader, by the way. That's another thing I noticed, जिन्होंने ये बहुत पुश किया है इस चीज़ को कि yes, legal aid आपने बात की है, this is as easy as just getting legal aid on board and they provide this legal support. It is as easy as getting Pakistan Mental Health Coalition on board. If you ever want to do this, अगर आपको लगता है आपके organization में add करना, it's very much, it's easy. We can connect you there, you can provide this They access. would be more than happy to be in this situation and be in a collaborative relationship where they are able to help other people and your employees as well. Exactly. इसमें आपने जिससे सवाल किया ना कि बोर्ड को हम कैसे कन्विंस करें, for my organization I would say it's a little different because we are already pro this domestic And policy. you have a very young inclusion. leader on top as जी, well. Hamid too. Ismail is the CEO of And Ismail his Global father is Pakistan. also very Smile Industries. Ismail के- Industries is the group that that's a family group that they have, and उधर पे भी बहुत इस तरह की policies जो हैं, They're very pro-female there. फीमेल के अलावा भी अगर जो बाकी एम्प्लॉयज़ के भी जो जनरल, बिसाइड्स वी डोंट जनरलाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, दे आर वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। Yeah. जहाँ पे सवाल था आपका कि बोर्ड की तरफ बात ले जाने की बात है, तो इफ़ आई डोंट टॉक अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन और अगर मैं जनरली बात करूँ तो देखें, अभी ड्यूरिंग द डिस्कशन आसिफ साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आप पॉलिसीज़ बना लें, आप लॉज बना लें, आप सब कर लें, लेकिन सबसे पहले एक इंसानियत और बीइंग अ ह्यूमन, आइडेंटिफाइंग दीज नीड्स, ये बहुत ज़रूरी है। ये वाली चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, आई रियली वांट टू ब्रिंग दिस टॉपिक अप, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने कहा था कि कंप्लाइंस ज़रूरी है, थोड़ी सी जोर लगाएंगे तो लोग कंप्लाई करेंगे। उन्होंने ये बात की है कि नो, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम वैल्यूज अप। सो योर वैल्यू वर्सेस कंप्लाइंस, प्लीज आई लाइक टू गेट अ टिडबिट फ्रॉम यू ऑन दिस। देखिए, जो मेरा मानना है, जनरली ओवर द इयर्स जो सीखा है हमने, बीइंग ह्यूमंस थोड़ी सी टेंडेंसीज रहती हैं हमारे अंदर। कभी कभी हमारी अपब्रिंगिंग हमें हेल्प कर रही होती है, कभी वो डिसएडवांटेज पे भी चली जाती है। सो पहले तो हम जो इंडिफरेंसेस है ना उसको अलग समझें कि ये इंडिफरेंसेस अल्लाह सुब्हानो तआला ने इतने जो लोग बनाए हैं, इतने 7-8 बिलियन जो लोग हैं, दे आर डिफरेंट। सो वो डिफरेंसेस कोई मतलब कोई अगर सिंध से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, तो डिफरेंसेस तो आ रहे हैं, ठीक है। अब वो डिफरेंसेस को हमें रिस्पेक्ट इंटरनली क्रिएट कैसे करनी।
सो इन आर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी हैव डन कि हमने तो सबसे पहले जब वैल्यू सिस्टम को डिफाइन किया कि वैल्यूज कहाँ से ड्राइव होंगी, सो वी वर एबल टू गेट 5 वैल्यूज ऑन बोर्ड, और वो खाली वैल्यूज नहीं थी, हम वी लिव बाय दोज वैल्यूज, ठीक है. सो गिव यू एन एग्जांपल, हमारा हमने उसका नाम रखा था आर राइड, रिस्पेक्ट, रिजिलियंस, इंटेग्रिटी, डायनामिज्म एंड एक्सेलेंस. इन 5 वैल्यूज के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है. अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट. अपने आप से शुरू करना पड़ेगा. हर बंदा पता नहीं किस माइंडसेट से बेगम से लड़के आया हुआ है सुबह ऑफिस में, यू नो, जस्ट टू, यू नो, ऑन अ लाइटर नोट, बट अगर जब वो आया है तो डेफिनेटली कोई लोड है जो वो कैरी कर रहा होगा. हाँ. हम कैरी करते हैं, वो मंकी थ्योरी ना, वो स्क्रैच कर रही है आपको बहुत सारी चीजें. सो यू नो व्हाट वी हैव टू डू कि पहले तो हम इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखें. हरासमेंट डेफिनेटली होती होगी, वो उस बंदे को शायद पता भी ना हो कि मैं कर क्या रहा हूँ. That's actually At very times. true. I've seen that. Yeah, They're not even उसको aware नहीं- of because their उनका own. अपब्रिंगिंग शायद ऐसी हो गई है कि उसको लग रहा है कि भाई तरबियत. ये बिल्कुल तरबियत की बात It हो boils रही down to that. Yeah. की कंडीशनिंग ऐसी है. या ऐसी हो गई है कि वो मतलब उसके ऊपर उनको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ. सम बॉसेस, यू नो, जिनको हम टफ बॉसेस कहते हैं, वो बेचारे उनको ऐसे ही ग्रो किया उन्होंने. Yeah. उनकी कभी ट्रेनिंग हुई नहीं, कभी डेवलपमेंट ही नहीं हुई, उनको ह्यूमनिस्टिक होने का एलिमेंट ही नहीं पता. So, but nevertheless, these policies are here to help us. Yeah. But उससे पहले हमें अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है. So अगर हम if we are a good human being, I think मैं just to give you another example, पेट्रोल पंप के ऊपर स्टेशंस पे आप लोग भी, जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी रुक के उसको जब आप पहुंचे ना, उसको अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू, आप उसकी शक्ल देखिएगा उस बंदे की कि ही वुड बी अमेज्ड कि यार मुझसे किसी ने पूछ लिया. Respect is free, but Yeah, we treat but it हम like नहीं it's a देते ना. very expensive commodity. Yeah. कि हम देते नहीं है respect, कि हमारे status. It's a low trust society. I feel like it's a lot of conversations around it, but आपने you hit the nail on the head जब आपने कहा है कि value system पे काम करना बहुत ज़रूरी है. पाकिस्तान में हमें लगता है कि जो दिखता है वो बिकता है, tangible चीज़ है, दिखता है तो we'll work on it. जब दिखता नहीं है, like values are intangible, नज़र नहीं आता है तो हमें लगता है कि वो इतना important नहीं है, right? There's one more thing which I would like to add. लोगों को ये भी लगता है कि रिस्पेक्ट एक बहुत इंटाइटल्ड सी चीज़ है, which comes only with money, which comes With only status. with designation, title. So आपका जितना हायर डेजिग्नेशन होगा, आप उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए इंटाइटल्ड है. कभी आप Otherwise एक लोगों के गार्ड साथ ऑफिस ऐसा बॉय नहीं हुआ है डिजर्व करता. कि you're in a senior position and somebody comes and starts pushing you around कि अच्छा चाय लेकर आए, ये करो वो नहीं, करो, नहीं. और फिर बाद में when they realize अच्छा आप ये हैं, हाँ. and then उनकी attitude बदल जाती है, Yes. and then you're just like that is so performative, right? So like अगर मैं इस position में नहीं होती तो फिर आप इस तरीके से मुझे treat But करते बात हैं. वो ये they've been Right? raised that way, उनके experiences ने उनको Exactly. उसी तरह किया है. So we need to get out of the performative वाला part of our mindset, और ये बहुत important point है. अभी देर पहले हमने ये discuss किया. एक बहुत बड़ा philanthropic organization है जो बहुत मशहूर है इस दुनिया में, एंड पाकिस्तान का एक चैप्टर है जो बहुत एक्टिव है, एंड उनका प्रेसिडेंट आया हुआ था, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट. उनसे जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यार ज़ैनब, मुझे इतनी अजीब चीज़ है, साउथ एशिया में ये वाहिद मुल्क है जहाँ तस्वीरें ज़्यादा ली जाती है, इम्पैक्ट कम किया जाता है, एंड दिस इज़ समथिंग वी वुड ऑल एग्री टू, राइट? सो एंड वाई, बिकॉज हमें नज़र आता है, राइट, एंड इट्स ऑल अराउंड अस. एंड ऐसे सिचुएशन के अंदर तो फिर हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसीज़ बहुत मुश्किल होता है इनको ग्रो करना. बट हर बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन ज़रूरी है. वो फाउंडेशन है तरबियत और वो वैल्यू सिस्टम है, तो वैल्यूज़ पे काम करें. सो दैट इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन. इसके आई फील अलावा ज़ैनब ये बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग सीनियर लीडरशिप जो है, अगर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज इट हैज़ टू कम थ्रू देम. अगर ऊपर अकाउंटेबिलिटी से बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है पाकिस्तानियों के लिए, पर ये ज़रूरी है. अगर इफ़ वी वांट टू टॉक अबाउट आवर मेंटल हेल्थ, आवर वेल बीइंग एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉयर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर आवर एम्प्लॉयज एज वेल, आप खामोश रहकर नो यू आर प्रोटेक्टिंग अब्यूज. When you make compliant and people friendly HR policies, you're protecting people. When people say that I don't want to be part of this, unfortunately, there's again a criminal activity, you treat it like a criminal activity. There is no here or there about it. There are laws about it. Even besides treating it as a criminal activity, which it is actually, आप देखें एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बहुत ही बेसिक ज़बान में बात करती हूँ, एक काम वाला है ना, मतलब एक आदमी है, उसका धंधा है, वो बोल रहा है मुझे अपने बिजनेस से मतलब है, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए. सो इफ़ यू हैव एन एम्प्लॉय देयर हु इज़ नॉट एबल टू डिलीवर व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड और व्हाट ही यूजुअली डिलीवर्स, जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे, आपकी फाइनेंसिस पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे आता है, तो आप डिग करोगे ना कि भाई मसला क्या है, तुम्हें क्या परेशानी है. Absolutely. So if And I we think start it falls building that down to the culture, HR. yeah.
अभी थोड़ी देर पहले भी यही भी बात हुई थी कि डज नॉट फॉल टू द It एचआर is not only an HR responsibility. It's It top is to bottom. Yeah, it's top to bottom and it is for the institutional resilience. अगर leadership की तरफ से ये चीज़ drive नहीं की जाए कि देखें in a society like ours, वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करना जो है बहुत मुश्किल होता है. तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कंफर्टेबल हो टुवर्ड्स द वन हु इज गोइंग थ्रू दैट साइलेंटली कि उसको ये कंफर्ट हो कि आई कैन टॉक अबाउट इट. आई वोंट बी करना बड़ा जज्ड. जरूरी है इधर. So Rabia Khatak है, ये head of DEI है Jazz की. Jazz was one of the first companies in Pakistan to adopt the domestic violence policy. I worked with her on it and I remember जब पहले 3 cases आए थे हमारे, expect बड़ा किया था कि औरतें आएंगी वगैरह. 3 cases were all men who were experiencing domestic violence at home and they had proof of it. And सबसे पहले the beneficiaries were men. So first thing I realized that this is not a male versus female issue. It's not a gender That's happening, case. especially in the corporate space. You cannot treat it as that. What does that do? That makes us all stakeholders in this problem. Now it's no longer a woman issue, Yes, a it is female not. issue. It is now your issue, your issue, your issue. हम सब इसके अंदर involved है. एक तो ये वाला point मुझे समझ में आया था कि it's very important to let people know that. And then again, values पे आपने बात कर लिया इसकी किस तरह compliance करें. There's a lot of different solutions to it. I would ask all of you to go on this website called mehfooz.ai, mehfooz.ai. उनका corporate pledge है. Okay, उनके top right पे click करेंगे corporate pledge. We worked with them earlier this year and हम pledges collect करें, but उसमें आपको detailed information मिलेगी कि policy किस तरह बनानी है, कौन से laws है आपके पीछे and how to go about it. Everything is right there. So जहाँ आपको confusion थोड़ी सी भी हो, that is your guide moving forward. And I do expect that after this conversation there are many companies that come forward and pledge. डर लगता है शुरू में, but trust me, it has a huge impact on everything that your organization does moving forward. Now हमने ये बात की है, हमें करना चाहिए इसके ऊपर काम. Definitely that is our good side of our mind, saying कि यार crime है, criminal activity को penalize करें. किस चीज़ से हम डरते हैं? Retaliation. वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है 2010. कितने लोग ने पढ़ा है उस एक्ट को प्रॉपरली? नहीं, आपने पढ़ा है. उसके बिल्कुल लास्ट 2 एरियाज, उसमें अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और रिटेलिएशन पे आप लोगों को यू कैन टेक देम स्ट्रेट टू द ओम्बुड्समैन. अनदर फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इज अगर आपने इंक्वायरी कमीशन खोली है और यू आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, दे से कि आप गलत है, आप यू कैन बाईपास देम एंड गो टू द ओम्बुड्सपर्सन. राइट, बहुत बड़े जो केसेस इस साल के जितने भी हमने सुने हैं, दे ऑल वेंट स्ट्रेट टू द ओम्बुड्सपर्सन. राइट, सो you need to teach this to your employees. You need to educate yourselves कि आपके actually rights क्या हैं. A lot of people feel कि retaliation पे मैं कुछ नहीं कर सकता. आपके rights बने हुए हैं, built in है. You can retaliate, you can do something. Now again, given all of this, one of the companies that really works on DEI, उनका एक harassment case आया मेरे पास. And this was something that shook me because that leader is one of the most vocal women's rights leaders that I had met in the corporate industry. तो उन्हीं की मैनेजर ने आके बताया था कि actually I caught him in an affair and उसके बाद से ये they've pushed me out of the organization. इतने बुरे तरीके से उसको डिमोट किया. अब उन्होंने मिलकर किया अपने आप को कवर करने के लिए, वो तो किया, बट एक औरत जिसकी करियर पूरी थी, शी वॉज 50+, देयर वाज नो अदर प्लेस शी कुड हैव गॉन, उसके साथ ये इम्पैक्ट हुआ है. इस ऐसे केसेस होते हैं जिससे हमें डर लगता है रिटेलिएशन के हवाले से. आई वॉन्ट यू टू काइंड ऑफ गिव मी एनी सॉर्ट ऑफ के एग्जाम्पल और अ केस, बिकॉज राइट नाउ दिस इज अ सर्कल ऑफ एम्पैथी व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक. ऐसे कोई केसेस हुए जो आपने देखे कि रिटेलिएशन हुआ है, और हाउ डिड यू गो अराउंड इट? व्हाट डिड योर ऑर्गेनाइजेशन डू इन दैट सिचुएशन? देखिए, रिटेलिएशन सिर्फ हरासमेंट केसेस के ऊपर नहीं होती, बहुत सारी केसेस पे हो सकती है. विसल ब्लोइंग का एक कॉन्सेप्ट होता है. अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी मैनेजमेंट के नॉलेज में लाते हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं हो रही है या गलत है या किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, कंपनी के रिसोर्सेज के हवाले से हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा ओपनली इसको पोर्ट्रे करते हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते हैं. स्पीक अप के सेशंस होते हैं, आपके मंथली क्लिनिक्स होते हैं जो टाइटल्ड होते हैं, कम एंड शेयर योर हार्ट आउट या टी This is very good idea. आई वर्क विद फार्मा इंडस्ट्री में मैंने कहीं काम किया है, तो उनका ये एक मंथली उनका रेगुलर होता था, स्पीक अप के नाम से उसका होता था. एंड पीपल वर देयर एंड दे वुड स्पीक फ्रीली अबाउट वट एवर दे वर गोइंग थ्रू और दे वुड रिपोर्ट इशूज़ लाइक दैट. इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आपको कॉन्फिडेंस देना है उस बंदे को कि जो बात की जा रही है इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट दैट. बिकॉज अगर आपको ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोग्रेस या उसका एक्चुअल कल्चर देखना है
तो ये उस वक्त नहीं होगा जब कोई शिकायत कर रहा है. What happens after the complaint has been made, then you get to know the real culture. So एक चीज़ तो ये ज़रूरी, yeah, because उसके बाद, and I'll be very open about it, ज़ैनब, बहुत सारे केसेस हैं रिटेलिएशन के जो हमने शायद खुद फेस किए होंगे या लोगों के देख के एक्सपीरियंस किए होंगे या हमने Has सुने everybody होंगे. seen something like that? देखा तो होगा कुछ अपनी आई एम श्योर जिंदगी में सबने एक्सपीरियंस किया किसी टाइम होगा. पे. And this retaliation and taking you down does not happen overnight. It's a very subtle movement. आपको पहले आइसोलेट किया जाता है, फिर आपके रोल को या तो बिल्कुल डिमिनिश कर दिया जाता है या आपको कम कर दिया जाता है, आपका डोमेन चेंज कर दिया जाता है, आपके परफॉर्मेंस नैरेटिव्स की कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है. लेकर आते हैं कि you have to leave. You don't have a choice and you would not want to wait that they ask you to leave. आप And बोलते हो this कि has I would happened to prefer men to as leave. well too. I've Yes. seen it happen on both sides. This happens to, I mean, it is not, tied to the gender that you are in. So, जब आप रिटेलिएशन की बात करते हैं तो इतनी हमने हरासमेंट की बात की है, डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी की बात की है. इन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर, और जैसे विसल ब्लोइंग की पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में या स्पीकअप का कल्चर अगर है, तो आपका एंटी रिटेलिएशन क्लॉज मैंडेटरी होना चाहिए. Yes. आपको ये कंफर्ट देना चाहिए उस बंदे को, बिकॉज एनीबडी हु इज कमिंग अप एंड स्पीकिंग एंड bringing up an issue means that he wishes well for the organization and for himself as well, or herself for that matter. आपको ये comfort और ये confidence देना बहुत ज़रूरी है कि you will not be exploited, your dignity will remain the same, और एक mechanism आपका ऐसा monitoring का built होना चाहिए for a certain period of time, whatever you decide, 3 months, 6 months, कि after the complaint, क्या उसकी performance की ratings ख़राब की जा रही हैं, क्या उसके role को change किया जा रहा है, क्या उसको इनफॉर्मल प्रेशर दिया जा रहा है, कोई एवरीथिंग इज नॉट डॉक्यूमेंटेड एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. अगर ये छोटे कुछ स्टेप्स भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर लें, बहुत फर्क पड़ता है. उससे बहुत फर्क पड़ेगा. आप यू व्हेन पीपल गेट टू नो, अगर आप साइकोलॉजिकल सेफ्टी के हवाले से बात मेरे करिए साथ जो कि अगर- हर ऑर्गेनाइजेशन अभी बात कर रही है. अगर मेरे साथ ऐसा होगा, मैं 10 और लोगों को बताऊंगी कि यू सी माई ऑर्गेनाइजेशन इज सो प्रोटेक्टिव अबाउट मी एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. You will be able to attract good talent and then you will be able to retain the people that you have. Absolutely, So ये absolutely. ज़रूरी है ये mechanisms build करना. वो तो जरूरी है. इधर I just before we come to you, I just want to ask everybody in the audience, raise your hand if you are happy with the workplace harassment policies at the workplace कि वो implement किस तरह की जा रही है. Raise your hand. So you've got जनता ने बोल दिया. Okay, exactly where we stand on Yeah, this. unfortunately. And this is why we need to talk about it. Okay. It's more or less a document which is lying Yeah. Yeah. into the office and not being worked upon. Yeah, Compliance बिल्कुल versus सही. values. Yeah, वही है. जो अभी आसिफ साहब ने पहले बात की है. Document exist करता है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं है. implementation नहीं है. हाँ. Yeah, absolutely. Majority, 90% I would say. I think Zainab, sorry. आसिफ साहब से नहीं, पहले but करते हैं just- then let's come just to to wrap Nafisa. up in one sentence. देखिए, लोगों के पास चैनल्स जरूर होने चाहिए, प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए सो दैट दे स्पीक अप. Yeah. जब स्पीक अप का आया ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या रखा हुआ है, योर वॉइस स्ट्रेंथन्स अस, Yeah. राइट? सो वो मतलब आपको यू हैव टू क्रिएट. लोग नहीं है कंफर्टेबल, अभी हम इतने मेच्योर नहीं, हमें अपनी मेच्योरिटी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम कितने मेच्योर हैं और वो अगला जो लिसनर है या जो डी कोड कर रहा है वो किस तरह से डी कोड कर रहा है. आप अपने बॉस के बारे में कोई चीज़ कहने जा रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं ले सकता, बिकॉज ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. Yes. ये हुआ. ये आई लाइक दिस. तो हाउ टू गो टू योर बोर्ड ऑफ exactly, डायरेक्टर्स. मतलब आपको कैसे जाना है ये एक अलग स्टोरी होगी, बट उससे पहले आपको एक ग्राउंड वर्क करना है. लोगों को चैनल्स देने हैं, जो कि विसल ब्लोअर वाली जो बात करी, बिल्कुल सही बात है. विसल ब्लोअर के अंदर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है टिल द टाइम कि वो चीज़ बिल्कुल अयां हो जाए, खुल के सामने आ जाए. सो यू नो, टू अंडरस्टैंड दिस हमें प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं, वॉइसेस क्रिएट करनी है, और फिर एक्शंस. एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स. आपके एक्शंस हो रहे होंगे, लोगों को कंफर्ट आएगी कि यार ये हुआ, वो रोल मॉडल वाली बात. एग्जैक्टली है, बिल्कुल. हो गया. You have to be a एक्शंस role हो रहे हैं model. बट लो हैंगिंग हो, बिल्कुल भले लो हैंगिंग हो, बट एक्शंस नजर आएंगे, पीपल विल गेट मोर कंफर्टेबल, दे विल कम टू यू, और यू नो थिंग्स विल गेट बेटर. और ये ऑटोमेटिकली पॉलिसीज कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी. पॉलिसीज बनती किसी यू नो एसीज के अंदर है और इम्प्लीमेंटेशन कहीं और होती है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. मैंने ओम्बर्ट्समैन से एक बहुत मज़ेदार चीज़ सीखी है विच आई थिंक यू शुड ऑल नो. इफ़ यू एवर वांट टू टेक एनी सच केस टू योर लीडरशिप, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इफ इट्स इन ऑल मेल board of directors, talk in numbers only, talk in money only. You will get your voice across. Don't try to appeal to an emotionally intelligent side. That will not work for you. That will actually backfire on you. Rather have a So female this in is that board. Rather have a female in that board. then that is one person you appeal to. But then other than that,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो, जो बात की है कि आप अपनी फ्रेम किस तरह करते हैं अपनी इस आर्ग्यूमेंट को, वो बड़ा ज़रूरी है. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर दिस पॉलिसी, दिस इज़ फॉर एनी डिफिकल्ट पॉलिसी दैट कम्स इन, जो ज़रूरी है. नाउ टेकिंग दैट, आई वॉन्ट टू टेक अ स्लाइटली डिफरेंट टेंजेंट. So just wanted to add what Hina said, and she said were anti-retaliation and all. And you said कि अगर किसी के पास कोई इस तरह की example हो, I would share my own example, which Sure. is weird actually. In one of the organizations I have worked with, one of my colleagues, a male colleague, he misbehaved, and in front of a lot of people on the floor, he yelled at me. He said something really mean, 2-3 words, and I did not respond back. उस तरह से बदतमीजी मैंने नहीं की, and I was like, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? खैर, one of the colleagues he said कि you leave and all, मैं चली गई. जब मैंने उस पर केस करने का सोचा कि मुझे केस करना चाहिए और मुझे ग्रीवेंस से क्लॉक करनी चाहिए, तो one of the very senior person in HR, a lady, she came to me and she said, look Nafisa, देखो आपस की बात है, इसको थोड़ा सा कर दो, कोई it's okay, forgive Compro him, करो. he's very sorry, छोड़ दो, लोगों की नज़र है HR पे. And I was like, look, मैं कुछ भी टॉलरेट कर सकती हूँ, disrespect, बदतमीजी मैं नहीं करती. If I'm giving you respect, this is the least I can expect कि मुझसे भी आप वो मैं डिज़र्व करती हूँ वो रिस्पेक्ट, ठीक है. मैं उसे आगे लेकर गई, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक उसको किया. मज़ीद एक सीनियर जो कि एक फोरम कहना चाहिए या ग्रीवेंस कमेटी आप कहना चाहिए, वन ऑफ द अगेन समवन सीनियर एंड फीमेल, एंड शी सेड हम आपको बुलाकर आपस में इसको मीडिएट करवा देते हैं एंड इट्स ओके, लेट इट गो. एंड आई वाज लाइक, इसको आगे क्यों नहीं ले जाया जा सकता? मैं फॉर्मली एक कंप्लेन कर रही हूँ. एंड आई सेड कि लुक, आई नो माई राइट्स और मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, तो मैं इसे आगे तक ले जाना चाहती हूँ. इन द एंड हुआ कुछ नहीं, मुझे बस एंड में एक रिटन अपॉलजी उनकी तरफ से मिल गई कि केस क्लोज, हमने इसको कर लिया था, हमने सारा मतलब किया. सो दैट्स हाउ दे डेल्ट विद द सिचुएशन. सो ऑर्गेनाइजेशन और मुझे उस they're पर trying to kill the problem rather than resolve the problem. यस So- उनकी जगह चेंज कर दी गई, उन साहब की कहीं और बिठा दिया गया. बस एक और चीज़ जो उसमें उन्होंने ऐड की वो ये था कि मुझे जो लोगों ने कहा, अब तुमने ये कर लिया है ना, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कभी ये बात फैल गई तो इट वुड गो अगेंस्ट यू, नोबडी इज़ गोइंग टू हायर यू, बिकॉज कोई भी ऐसा एक प्रॉब्लमेटिक एम्प्लॉय को हायर नहीं करना चाहता. इन लाइक 18 years ऑफ माई करियर कभी मैंने ये चीज़ नहीं की होगी, लेकिन अगर मैंने एक बार एक बदतमीज़ी के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन रेज की है तो दैट इज़ गोइंग टू बी यूज अगेंस्ट मी. ये आपको फिर डराया जाता है, दबाया जाता है. रिटेलिएशन को रिजॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है फ्रॉम एक्सपीरियंस इज एलाइशिप. रिटेलिएट इसलिए करता है वो इंसान क्योंकि उसका एक सपोर्ट Support सिस्टम है, मिल उसको रही पता होती है कि आप कुछ बोलेंगे, ही इज गॉट अ सपोर्ट सिस्टम और शी इज गॉट अ सपोर्ट सिस्टम अगेंस्ट यू. बट आपका अगर सपोर्ट सिस्टम पहले से नहीं बना हुआ है, कहता है ना योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, दिस इज वेयर इट कम्स इन हैंडी. एनीबडी हु इज पावरफुल नोज दैट द पावर कम्स फ्रॉम द पीपल यू नो. Okay, so very very important to understand that allyship अपने companies में encourage करें women के बीच में. Already sisterhood is in danger in Pakistan because वो लोग कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन है. I don't agree with that. I've not had that experience. I work in violence. I know ऐसा कोई सीन नहीं है, but ये this is our conditioning that we need to break out of, and women also need to break out of that conditioning Zainab, for us to move forward. Yeah. इसमें जैसे नफीसा ने मेंशन किया ना कि डिफरेंट तरह के लोगों की डिफरेंट परसेप्शन होती है और वो उस हिसाब से आगे खबर फैलाते हैं सनसनी की तरह Yeah. से. सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं. आई मीन आई गिव अ वेरी वेरी क्विक स्मॉल एग्जांपल. I had an issue with an ex-employer and irrespective of whatever position you're on, आपका reference check होता है. Yeah. मेरा अच्छा खासा बाकायदा तौर पे फड्डा हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ. I did not go into legal, but I stood there and I said that this is my right and I want it. ये दोनों पॉइंट्स में ये मैं देख रही हूँ कि you have to stand and you You have have to keep it to. consistent. You have to. Because the minute you So, back off, जैसे then इनको वो- ये बताया गया ना कि अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात होगी तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारी डिप्यूट हो जाएगी and all that. That's all. It's again I would say this is something you should not even have for a second. While at the time of reference check, he was told all this, and then the person who hired me after that job said that means she can stand up for herself and she'll stand up for anything which goes wrong in the organization. So that can benefit you as well. अच्छा, इसका I'll connect it to the work that I do, and then we'll move to the next topic over here. I work with violence prevention. So rape cases is something that we deal with, and we teach our victims के the victims जो retaliate करते हैं ना have an 80% chance of surviving that experience. It's a predator's mindset
It's a bully's mindset. वो coward ही होता है. They're looking for a weaker victim. So if you don't stand up, they're going to keep pressing you down. अभी जो recent case मैं deal कर रही हूँ, that lady, I'm constantly telling her कि please stand up. No, अगर मैं चुप हो जाऊँगी, अगर मैं side में हो जाऊँगी, खत्म हो जाएगा. I was like, no, they will wring you out to dry, and you will keep going until you stand up and you do something, which is what we're seeing two ladies here on the panel actually having done all of that. So इन दोनों एग्जांपल्स में सबसे जो चीज़ हम देख रहे हैं दैट्स बेसिकली एब्सेंस ऑफ अ साइकोलॉजिकल सेफ्टी एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. it all boils down Yes. to that. ये जितने भी हम बातें कर बिहेवियर ही लें, नहीं है कि टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द टॉप ओनली. सो वही इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है. द एम्प्लॉय डजंट फील सेफ इनफ टू रेज दीज थिंग्स, या वो चीज़ विसल ब्लो की तरह निकल जाती है बाहर. आप अपने लीडर से बात कर रहे हैं. ये जमील यूसुफ साहब हैं, टीपीएल के ओनर हैं. ये आए थे अभी, उन्होंने कहानी सुनाई थी फैम्पैक पे. ही सेड उनकी एक जूनियर मैनेजर आई थी फीमेल, एंड शी सेड दैट आई लॉज्ड अ कंप्लेंट. वो कंप्लेंट मैं एचआर पे गई, बाद में पता चला एचआर मिला हुआ था. अब उन्होंने उसको दबा दिया, इंक्वायरी कमीशन को बंद किया, वो रिपोर्ट ही निकाल दिया. व्हेन ही फाउंड आउट, ही इज लाइक वेयर इज द एविडेंस? शी इज लाइक इट्स ऑन हिज कंप्यूटर. So he's like, if I go to him, he's going to wipe it out. What do I do? So the man who started CPLC called FI and raided his own offices. That is leadership. Okay, उन्होंने जब खड़े होकर बताया था ना, he was telling the organizations that day that आप लोगों को क्या पता, मैंने तो पैसा बनाया है इससे, मैंने तो ट्रैकर बेचा है इससे. Okay, so it does not always end up in a bad business decision. It can lead to much more profits if you keep a psychologically safe space for your employees. Now moving forward, psychological safety is also connected not just for women. Women के लिए हमारे लिए physical safety is important. For men, it is financial safety which is important. It's everything for a man's life. Do we agree? कि the whole pressure, क्योंकि आप अपने सिर्फ ये नहीं है कि बस बीवी बच्चे हैंडल करें, माँ बाप भी हैं, पूरा खानदान है, फिर आप फिलैंथ्रोफी भी आगे जाके कर रहे हैं. सो योर मनी इज गोइंग इन एवरी डायरेक्शन, एंड समटाइम्स यू फील लाइक आपकी सेविंग होती नहीं है, राइट? दिस इज वेयर आई ब्रिंग द कन्वर्सेशन टू यू. सो अभी रिसेंटली दिस ईयर एम्प्लॉय फाइनेंशियल लिटरेसी एक नया ट्रेंड है जो कि अभी डेवलपिंग नेशंस में राइज हो रही है. हमारे साथ इंतज़ार बादशाह साहब भी हैं. यू नो एग्जैक्टली वेयर दिस कन्वर्सेशन इज अबाउट टू गो. Investing is the need today. It is no longer an option, ladies and gentlemen. आपके पास 500 रुपये भी है, आप अभी एक म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, right? I keep saying this again and again. The fact that we don't invest, we have excuses. Pakistan is not an investment friendly country. करते नहीं है, हम सोचते भी नहीं इसके बारे में. पैसा आते सबसे पहले होता है कि गाड़ी खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद. Investment friendly countries like Japan for example, what they do is पैसा आता है 20% डाल दिया, ये तो है ही नहीं मेरे पैसे, ओके, एंड इट्स गॉन, यू डोंट टच इट, राइट? सो क्योंकि अगेन कल्चर जो दिखता है वो बिकता है, उस कल्चर में सेव किस तरह करो, दिस इज वेयर दिस कन्वर्सेशन कम्स इन. सो अब कंपनीज हैव एन अपॉर्चुनिटी कि अगर आप वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सिखा दें आपने लेडीज़ को या मर्दों को सिखा दिया आपने, they can themselves create assets within whatever they have, and the companies don't have to increase their salaries. क्योंकि अगर आप हज़ारों के तादाद में लोग हायर करें, how do you increase their salaries? तो आप तो you'll be wiped out. How do you incentivize people? क्योंकि हमने ये बोला ना कि वो करते ही नहीं इन्वेस्ट. How do you push these people to go in that direction? अच्छा, so companies जो हैं they can collaborate with financial institutions. Yeah. अभी हम थोड़ी देर पहले जब डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने तभी ये बात बोली थी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ आप कोलैबोरेट करें, यू मेक इट गवर्नेंस या बाकी सब चीज़ों के ऊपर आप उन पॉलिसीज़ को फॉलो करें ना करें, लेकिन इसको कर सकते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को बताएं कि देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ योर सैलरी या आपकी सेविंग में या आपकी इन्वेस्टमेंट में जा रही होगी. हम इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमने वहाँ पर कर दिया, आपको इसका सर्टेन पार्ट मिलेगा. VPS है आपका, पेंशन फंड होते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ होती है, आप उसमें उनको वो ऑफर करते हैं. यस, द कंपनी वुड इन्वेस्ट फॉर यू एंड इन रिटर्न आपको इतनी अमाउंट मिलेगी या एक सर्टन परसेंटेज या इस तरह से मिलेगी. तो आप उनके अंदर ये वाली एक फीलिंग या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम बचपन से, स्पेशली ख़वातीन, बंदों का मुझे नहीं पता, बंदे भी वैसे करते हैं, कमेटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं इससे डिसएग्री करती हूँ. बाय द वे मेरी खुद की एक रीसेंट कमेटी, ज़िंदगी की पहली कमेटी जो मैंने डाली है, जिसके 3 महीने रह गए हैं और जो ख़त्म नहीं हो रही है. मुझे दूसरी कमेटी मिल गई थी, सो यस आई एम लाइक डूइंग दिस मसले में.
बट अब वो 3 महीने जो है मुझे खल रहे हैं, बस पूरा साल ही खला है. खैर, लास्ट 6 months जब ये ईरान वाला इंसिडेंट हुआ था, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, जर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. जर हेल्प मी अ लॉट, अकाउंट खुलवाना, सारी चीज़ें प्रोसेस करना. हमें फाइनेंशियल, अगर मैं एज अ फीमेल अगर मैं किसी को बताती हूँ, मैंने अपने ऑफिस में बताया हुआ है कि अच्छा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पीपल लाइक रियली तुम भी करती हो. एक तो इतना टैबू कॉन्सेप्ट है कि एक औरत स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, उससे ट्रेडिंग का. It's not rocket science. इट्स नॉट एक्चुअली. It's actually not difficult. हाँ, You know? आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग करें. राइट पीपल, राइट आपकी एक गैदरिंग हो, थोड़ा सा आप यूट्यूब, मशल खान जो एक Yes. सेलिब्रिटी भी है, मशल, She's doing a गॉड very good ब्लेस job. यस, मैं उसी से इम्प्रेस होके, टू बी ऑनेस्ट, मैंने आई स्टार्टेड इट एंड आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि आज से कुछ अर्से पहले तक मैं वही हूँ जिसका इंटरेस्ट होता था कि अच्छा मुझे गोल्ड की रिंग बनवानी है. अब मैं कहती हूँ नहीं यार, थोड़ा सा भी ना, कोई गोल्ड का 1 ग्राम 2 ग्राम जितना भी हो, मैं वो ले लूँ. ठीक है, और पीमेक्स में होता है, आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हैं. You don't need to buy an entire तोला anymore, you know. एग्जैक्टली. सो ये एक तो बहुत अच्छा आई वुड से कि प्लेटफॉर्म है कि आपको ऑनलाइन एक तो मिल जाती है, ठीक, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस को इन चीज़ों पे करने की ज़रूरत है. Yeah. वी कैन ऑल्सो अरेंज सेशन. सो फॉर एग्जांपल, आई नो पीपल जो कि फाइनेंशियल वेल बीइंग के ऊपर, आपकी मेंटल वेल बीइंग के ऊपर, लेकिन फाइनेंशियल वेल बीइंग के ऊपर भी सेशंस कंडक्ट करते हैं. कि मे बी नॉट एवरीबडी इज़ इनटू इन्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें, लेकिन कम से कम आपको वो एवेन्यूज़ बता सकें जहाँ पर आप कर सकते हैं. That is very important because if I go and I start asking ladies, तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से आगे निकल नहीं, वो कर नहीं पाते हैं. कमोडिटीज हैं आपके ETFs हैं, आपके बॉन्ड्स, आपकी इतना वाइड वैरायटी है. बट जनाब इसकी लिटरेसी देना जरूरी है. That So, is where वही employee लोग- financial literacy Yes, so training वो- से शुरू करके. हाँ. बट वो जो आपने बात की है कि वो फंड ही बनाते हैं इंटरनली फॉर कंपनीज, दैट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर देयर एम्प्लॉयज, वुड बी अ गेम चेंजर फॉर द कंपनीज, बिकॉज बॉटम लाइन तो आपका वैसे ही सेफ है. Salaries right? increase नहीं कर रहे हैं. Salaries increase नहीं हो रही है, मोरल बढ़ रहा है, एम्प्लॉय आपका इज गेटिंग मोर एंड मोर सेफ फाइनेंशियली. देयर इज अ कन्वर्सेशन दैट ये निरान रहमान है, नीम पे नाउ का जो हेड है, इसने की थी एंड इट वाज वेरी पावरफुल वन. ही टॉक्ड अबाउट द मेल सुसाइड रेट जो कि बड़ी है, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इट गेट्स हिडन अ लॉट. एंड कॉर्पोरेट स्पेस में यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी कार्डियक अरेस्ट हैपन इन द ईयर ऑफ 2025. वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, okay, and all because of financial Financial pressure stress. only, right? In men, financial pressure translates into cardiac arrest. In women, it translates into cancer. You will notice that, right? So again, it becomes a health problem. Now it's beyond just the ROIs. It's beyond कि यार हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए. It is mandatory. So out of everybody who है, जितने भी लोग हैं, जितने भी organizations हैं, would you go to your organization? Would you push them for a financial literacy courses within your organization? Do you think it is important? We need to move now Pakistan in this direction. Yes, let's have it from the expert. Yes. Okay. First of all, thank you very much for the amazing, beautiful ladies. Now we like you more. बड़े hesitate करके बोला है, amusing, beautiful. Yeah, now we like you more. सारे मेरे दोस्तों को बुला लिया, मुझे वही होना चाहिए था. But I'm in the plane. So this is our Basha. I'm representing AKD Securities, and thank you very much, Hassan, Ibrahim, and Zainab for this amazing session. Ramzan है, but still it's an amazing session. Financial literacy is a topic जिस पे obviously बात सब करना चाह रहे होते हैं, but ठीक है, limitation होती है. दो चीजें मैं आपको यहाँ पे highlight करना चाहूँगा. Like I do go for like financial literacy things. अभी मैंने National Assembly में जाके financial literacy conduct किए. Nice. So like काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरफ इंटरेस्ट ले रहे होते हैं. So हम जब बात कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट्स में ना, मैं जाता हूँ डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जाके फाइनेंशियल लिटरेसी के 1-2 घंटे के सेशंस होते हैं. और ट्रस्ट में जो रिजल्ट होता है वो होता है कि अगर 100 लोगों ने उस सेशन को अटेंड किया तो 80% to 90% का रेशियो होता है कि वो उसी दिन से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल. I have seen that as well too. lacking is in the financial literacy side. ये लोगों को ये नहीं पता कि how to start this journey. मालूम Yeah. नहीं है. Now the spotlight's on you. अच्छा, बिफोर जर मूव्स फॉरवर्ड, मेरा एक सवाल है सबसे, आप में से कितनों को पता है एक छोटा पेंशन फंड के बारे में कितने लोग जानते हैं? यू हैव योर Quite a आंसर. lot, yeah. less हाँ, इधर पेंशन पीछे फंड. pension fund.
म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है, पेंशन फंड होता है, कितने लोग जानते हैं? मुझे कहाँ से पता चला? मैंने मशल की एक वीडियो देखी जिसमें उसने बताया कि पेंशन फंड, और ये यंगर लॉट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आई हैव क्रॉस्ड माई 40s, ऑल्दो मैं अभी भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वॉट एवर यू आर अर्निंग, 1000 2000 you invest, you start investing, now is the right time for you guys। मगर आपको किसी ने ये चीज़ बताई, आपने खुद से करने की कोशिश की? नहीं, कोई नहीं, किसी को हमें बताता ही नहीं है, वो लिटरेसी है ही ओह यस। सो इसमें बहुत सिंपल है कि आप अगर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं तो जो अकाउंट ओपनिंग और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं वो टाइम होता है लाइक 90-80% का रेशो है। बट प्रॉब्लम फिर ये आती है कि ऑर्गेनाइजेशंस पे मेरे पास आई, पहले उन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि अपने मेरे एम्प्लॉयज़ को आके आप बताएं, फिर उन्होंने ये बताना शुरू किया कि जी ये लोग, जब मैंने फीडबैक लेना स्टार्ट किया जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, तो दे वर लाइक यार लोग बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए, बिजी हो गए इन देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, और काम उनका इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो उनके लिए ओके, तो बड़ा सिंपल है कि देखें। और तीसरी बात ये कि लोग ये पूछना स्टार्ट कर देते कि हाउ मच कैन आई इन्वेस्ट एंड हाउ कैन आई स्टार्ट माई इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको कोई लाखों रुपए नहीं चाहिए, आपको बहुत सिंपल सी बात है, यू कैन स्टार्ट विद ज़ीरो बट विद योर प्रीशियस टाइम। हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जी आपका एक प्रैक्टिस अकाउंट आप ओपन करें, उस प्रैक्टिस अकाउंट में हम बाइंग सेलिंग करें एंड गो फॉर इट, ठीक है। PMAX ने भी So, किया हुआ है, एक PSX चीज़ ने भी किया हुआ है, जो यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत है, दैट इज़ फोर्स इन्वेस्टमेंट। हम सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कमेटी का एग्जांपल दिया नफीसा ने, तो मैं वैसे तो कमेटी के खिलाफ बात कर रहा होता हूँ, बट मैंने मार्च से कमेटी खुद स्टार्ट की है, तो मैं पहली कमेटी मुझे मिलती है। अच्छा, वो कमेटी के वैसे लेके मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। 1 साल बाद मैंने देखना है कि जो मैंने किस्तों पे पैसे देने हैं वो मेरे पैसे कितने होंगे, तो आई एम श्योर कि 50% का रिटर्न तो उसमें मिलना ही मिलना है, ठीक है। दैट्स नंबर 1। बट ठीक है, अगर दूसरी तीसरी के बाद कोई कमेटी आपको मिलती है तो फिर तो आप लंबर से गिरी गए। एक चीज़ जो आप सबको स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि मेरी एडवाइस होगी फॉर यू गाइस, कि फोर्स इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शायद मुश्किल हो, बट फोर्स इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बहुत आसान तरीका है टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी। हाउ? हम सारे लोगों का जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम सब लोग जो है अपनी अपनी कंपनीज़ में प्रोविडेंट फंड लेके बैठे हुए होते हैं, और प्रोविडेंट फंड हमारा बस पड़ा होता है, और उसमें हमें रिटर्न या तो नहीं मिल रहे होते या फिर बहुत 5-10% मिल रहे होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़, इस प्रोविडेंट फंड को आप विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करके, और आपने रीपेमेंट भी करनी है अपनी कंपनी को, कि प्रोविडेंट फंड आपने किसी क्लॉज के तहत आपने विड्रॉ किया, रीपेमेंट आपने करनी, तो इसके 2 फायदे आपको होंगे। एक फ़ायदा कि आपने आज इन्वेस्ट किया और उस पर आपको कैपिटल गेन, डिविडेंड और बोनस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यू कैन गेन आउट ऑफ दैट अमाउंट, नंबर 1। नंबर 2, आपकी फोर्स इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो गई कि अब जब आपकी सैलरी आएगी, जिस तरह से उसमें से टैक्स या कोई और लोन डिडक्ट होता है, तो उसमें से आपकी जो इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होगी, दैट इज योर फोर्स इन्वेस्टमेंट। आपका प्रिंसिपल इज सिक्योर, यू हैव ऑन अ मंथली बेसिस आपकी इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो गई, तो दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। Yeah, absolutely. This is good. सबको एक मुफ्त का आज फाइनेंशियल लिटरेसी का सेशन मिला है। ओके, थैंक यू सो मच सर। यस, इसके लिए तो बिल्कुल तालियां। एंड अब नाउ गिवन दिस कन्वर्सेशन एंड वी नो कि पॉसिबिलिटी और बड़ा ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है, इट्स नॉट वेरी कम्प्लेक्स लाइक द लास्ट टॉपिक दैट वी हैड। फाइनेंशियल लिटरेसी इज important. It's important for us personally, it's important for the country, it's important for the companies that you're sitting inside. Yes, ये वाला जो ऑब्स्टिकल आपने बोला है ना कि अब सडनली एवरीबडी इज नाउ फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग, ओके, अब वो फाइनेंशियल हैबिट्स को एज पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल बनाना ज़रूरी होता है। सो इट शुड नॉट बी योर होल लाइफ, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। यू शुड जस्ट हैव अ हैबिट ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इनटू समथिंग और द अदर। सो वी हैव समबडी एल्स फ्रॉम द ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम। Right. Assalamu alaikum everyone. I'm Sayyida Ramsha and I'm a corporate business partner at English Biscuit Manufacturers, and I think you guys are having a wonderful discussion. It's very relevant to everybody in the audience, not just the female population but the male population as well. But चूँकि हम financial literacy के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, as a woman, if I were to ever think of investing, and I did say if ever, which means I haven't started yet, or maybe I'm starting with very little that I have. But the two things that I mostly focus on are the fact that मेरा पैसा कितना secure है। बाद में सोचेंगे डिविडेंड क्या है, मुझे मिल कितना रहा है, उस पर मैं कितना बनाई, वो बात की बात है। पहले तो मेरा कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया वो कितना सिक्योर है, एंड दूसरी बात मैं कितना इजीली बैक आउट कर सकती हूँ, और आई कैन It should be liquid and it should not have too many risks. Absolutely. तो फिर वो आप bonds के साथ फंस जाएंगी ना, फिर you won't be able to make good money. But again, do you see? Like- And when I say this as a woman, I'm saying this after a discussion with all the peers within my network or my close friends
who are also very much interested in investment or securing their future, but they're very concerned about the kind of money that they're investing and what they're getting in return, if it's safe for them or not. So अगर हमने psychological safety की बात की in the organizations for gender-based violence or anything pertaining to harassment, I think financial literacy के लिए भी हमें एक concept थोड़ा इस पे discuss करना चाहिए कि how secure it is for women, psychologically safe to discuss about this. अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया मशाल की वजह से जो एक सोशल मीडिया प्रेजेंस अब रखती हैं, बट शी वाज अ सेलिब्रिटी और एन एक्ट्रेस इन द पास्ट. आई थिंक शी हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन टू अंडरस्टैंड दिस. सो वी नीड women representatives or female representatives when it comes to the financial security. Absolutely agree with so, that. Again, एक और बात अभी यहाँ हुई थी कि बैचलर्स कमेटी की बात हुई, बीसी जो कहा कि खवातीन डालती हैं. एक्चुअली इट स्टार्टेड एज अ बैचलर्स कमेटी एंड मेल पॉपुलेशन स्टार्टेड इट. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो कहीं ना कहीं अब ये एक टाबू कॉन्सेप्ट बन गया कि यार खवातीन तो पैसे बीसी में लगा देती हैं, इसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता, बड़ा लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है. यू आर स्टिल वेटिंग फॉर 3 months एंड ऑल. द आइडिया इज कि शायद हम में से कई खवातीन को शर्म भी आती होगी एक्सेप्ट करते कि यार हम तो अपने पैसे अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बीसी में लगा रहे. यू गेट माई पॉइंट. So हमें वो psychological safety create That's करनी है. actually the only financial literacy that That's women the get only from one. growing up. And जहाँ मैंने देखे जो अभी उन्होंने बात की है बिल्कुल सही, जहाँ उनको पता चलना शुरू होते ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है. अब जैसे आपने जो सवाल बोला है ना रिस्क का, I'm so sorry to interject you like this, but एक और कॉन्सेप्ट है अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. सो आज से पहले खवातीन के पास पैसे होते ही कहाँ थे अपने कमाए हुए. हमारे पास या हमारी पॉपुलेशन में हमारे वालिदैन से मिलते थे या हमारे स्पाउसेस से मिलते थे, वो हम जमा करते थे, वो हम बीसी में लगाते थे. अब मेरे ख्याल से हम सबकी सब कमाने वालियाँ हैं, हम लोग जो है अपने पैसे के ऊपर हमें इंडिपेंडेंस भी है, कंट्रोल भी है. तो नाउ वी कैन मेक बेटर डिसीजंस. सो टू मेक बेटर डिसीजंस वी हैव टू बी इन्फॉर्म्ड. सो आई थिंक Zara is doing an amazing job. Zainab herself is doing an amazing job. One of your sessions that I attended, FemPact, was such an eye opener for all of us. So again, psychological safety you created. From over here also today, I think when we go back within my organization as well, I pledge to have more sessions around female financial literacy and female financial independence. And inshallah, we should definitely come back and at the same platform discuss कि उसके effect क्या हुए. Absolutely, because it I all agree depends with on that. the ROI, right? yes At the yes end of the yes. day. और ये जो अभी आपने थोड़ी Thank देर you for पहले letting बात की है, yes. थोड़ी देर पहले आपने बात की थी रिस्क की. I'm going to close off the topic on this. It's risky in the short term, it's not risky in the long term. So अगर आप hold कर रहे हैं, the holding will always give you a profit. That's what I've learnt out of all the financial literacy. Workplace harassment से financial literacy ज़्यादा होता है. पैसा. अच्छा जी, सो बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट इज़ लाइक एन अमेजिंग पॉइंट. दो चीज़ें होती हैं. सबसे पहले अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी जगह में, तो आपको ये करना होता है कि मेरी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी. अगर मुझे ये पैसा वापस चाहिए तो मुझे ये पैसे कब मिल सकता है, किस तरह से मिल सकता है. तो एक तो ये कि अगर आप स्टार्ट करते हैं कि आपने सबसे पहले आपने चूज़ करना है. Yeah. मैं स्टॉक एक्सचेंज पे बता सकता हूँ कि जी टोटल 545 कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि स्टॉक में लिस्टेड है. हाँ. तो एग्जांपल इसका इस तरह से, हम 4 बडीज मिलके अगर कोई कैफ़े खोलते हैं, ठीक है, 4 पार्टनर्स हैं और हमने कहा जी ये कैफ़े मैंने खोलना है, उसमें से हर एक पार्टनर ने 25% लगाने हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए लगने, 2.5 लाख हर बंदे ने लगा लिए. तो मुझे अब ये देखना है कि यार मैं जो 3 पार्टनर्स मेरे साथ हैं, क्या ये काम करेंगे, काम छोड़ तो नहीं है, क्या हमारे पास राइट नॉलेज है, क्या हमारे पास टारगेट ऑडियंस है या नहीं है. तो और चौथे पार्टनर हम खुद होते हैं. इसी तरह से जब आप आते हैं स्टॉक मार्केट पे, तो हम सारे लोग ग्रेजुएट होके जब निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम या तो यूनिलीवर जाएं या एंग्रो जाएं या शेल जाएं, किसी भी फैंसी कंपनी या स्माइल ग्लोबल जाएं, ठीक है, किसी बेहतरीन कंपनी में जाएं, ठीक है. सो इस तरह से जो 545 कंपनीज है, आउट ऑफ ऑल दोज 545 कंपनीज यू चूज 5 or 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज. Yeah. सो अगर आपको भरोसा है, आपको बिलीव है कि जी एंग्रो ने तरक्की करनी और मैं एंग्रो का ऑनर बनना चाहता हूँ, ठीक है, बनना चाहती हूँ, तो आप एंग्रो में इन्वेस्ट कर लें. सिमिलरली इसी तरह से 4 से 5 कंपनीज लें, उन 5 कंपनीज पे फोकस रहें. आपके शॉपिंग हैबिट भी बदलेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट हैबिट्स भी बदलेंगे और आपको आपका पैसा जब सिक्योर होके कैपिटल गेन के साथ मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको ट्रस्ट डेवलप होगा. एंड आई एम 200% श्योर कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एज यू सेड, कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर चिल्ड्रन.
So Yeah, absolutely. for investment, the ideal time was yesterday, and the best time is today. ठीक है, so I start agree. today. Yeah, thank you. I absolutely agree. बिल्कुल. रमशा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी. When you'll start investing, when you'll talk about it with people, ठीक है, there'll be people who'll always tell you पैसा सेफ नहीं है, दिस इज नॉट अ सेफ ऑप्शन, पैसे डूब जाते हैं, मैंने तो स्टॉक्स में पैसे मैंने देखा जिसने भी लगाए Important डूब not to गए, listen to हमेशा. everyone. Very important. And it's not just financial literacy, by the way. Life में whatever different you're going to do, whatever it is, people will always tell you. For an example, अगर if you'll talk about work-life balance, people will tell you ऐसा ही होता है, 9 to 5 जॉब करके ना आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं, आपको लॉन्ग आवर्स लगाने पड़ेंगे तभी आप तरक्की करेंगे, क्योंकि यही नॉर्मल है. CEO That's तेल their बेचने normal. गया हुआ है ना, That's बस. not, you don't have to make it your normal. उसी तरह financial literacy is for them maybe कमेटी. कुछ लोग बाय द वे बड़ा आपने कहा ना कि लोगों के खवातीन कहती हैं नहीं नहीं कमेटी हमारी तो बस इतना ही वो है. नहीं, some people are very proud of the fact हम कमेटियां डालते हैं, तुम तो पैसे डुबोने वाली बात कर रही हो. So that will also happen कि There's कमेटी always डालना a lot of safe. unlearning and a lot of biases that you have to cover moving Exactly. forward. और आज की जो जितने भी टॉपिक्स अगर आप नोटिस करो उसके अंदर बायस इज वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल इश्यूज दैट वी हैव. डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, नाउ फाइनेंशियल लिटरेसी. और अब जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक कर ना वो और ज़्यादा उसके अंदर ये कहानी है, क्योंकि 100% आई कैन टेल दैट most of you over here won't even be aware of what this issue is in the first place and how it's actually affecting your life and how HR can actually turn this entire situation around. इस कहानी के लिए हम आएंगे आयशा के साथ. आयशा के पास तो ये एक कन्वर्सेशन है न्यूरो डाइवर्सिटी के ऊपर. ओके, सो लाइक what I would like all of you to come inside this discussion. Neurodiversity कोई अभी मुझे बता सकता है inside the circle over here what it is? Neurodiversity? No? It's basically a difference of personalities where some people might have be on spectrum, some might Yeah. not, Down syndrome, and how we all are making them inclusively notice. Yes, so neurodiversity अगर boil down करूँ, दो किस्म के लोग हैं दुनिया में. न्यूरोटिपिकल And then- जो जनरल फॉर्म है और एक न्यूरो डाइवर्स है. ओके, अब न्यूरो डाइवर्जेंट लोग का क्या व्हाट्स द डिफरेंस? ब्रेन के अंदर फ़र्क है, ब्रेन की फंक्शनिंग, ब्रेन का स्ट्रक्चर में फ़र्क है. ओके, उसका ये नहीं मतलब है कि दे आर लेस लाइकली टू बी बेटर. The brain is wired differently, basically. या They're not आपके deficient. सबसे बड़े जो बिलियनर्स अभी बैठे हुए हैं ना वो सारे न्यूरो डाइवर्जेंट है बाय द वे. ओके, आपके सबसे बड़े इन्वेंटर्स इन हिस्ट्री, आपके जो सबसे पीपल हु थिंक डिफरेंटली आर यूजुअली न्यूरो डाइवर्जेंट. सो एक्चुअली ये आपका कंपनी का एक लॉस पोटेंशियल है. क्यों? पूरे दुनिया में डिसेबिलिटी की अकरेंस है 15% ऑफ द पॉपुलेशन. पाकिस्तान में ये है 23%. क्यों? क्योंकि कज़न मैरिजेस में नंबर 1 है पाकिस्तान एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड. ओके, एंड दैट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ द ब्रेन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज स्ट्रक्चर्ड. अब आपको पता है कि न्यूरो डाइवर्जेंट इतनी कॉम है, why are we still working only on neurotypical processes? That is a very big question that I have to hold in front of everybody here. कि आप में से कितने लोग न्यूरोडाइवर्जेंट हैं? अब ये एक डिसेबिलिटी है जो इनविजिबल है. मैं न्यूरोडाइवर्जेंट हूँ, मैं स्पेक्ट्रम पर हूँ. आई एम एक्चुअली डिसलेक्सिक, आई ऑल्सो हैव ADHD. आई बीन स्ट्रगलिंग विद दिस सिंस आई वाज अ किड. ये द फैक्ट दैट आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, 14 साल की उम्र तक मैं तोतली थी. सो पीपल डोंट नो दिस. सो इनविजिबल है. But I struggle every day. I have those issues. I get overwhelmed immediately, right? And I have to create processes. अब मुझे मुस्तकिल stress अपनी ज़िंदगी में ऐड करना पड़ा है just to make myself be work in a world that is built for everybody else, right? And not for me. How can organizations make such people feel included? That is the question for this session right now. So I think सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारा, इट्स अ कल्चरल चैलेंज ऑल्सो. टैबू है कि वी वांट टू फिक्स दोज पीपल. वी डोंट हैव दैट एक्सेप्टेबिलिटी कि ये भी एक किस्म के लोग हैं एंड वी हैव टू फिक्स द वर्ल्ड टू एडजस्ट देम. So that is something जो I think globally बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, that they're not fixing medically also, that they're not fixing these people whoever has ADHD या autism है, they want to make the world inclusive for them कि वो भी उसमें काम कर सकते हैं. So as organizations also we need to understand कि what talent are we losing on. अगर एक ही किस्म के लोग हैं
the same kind of, you're losing on innovation also, because these people bring on a different level when you talk about innovation, when you talk about the way they think, when you talk about maybe some things, जैसे उनके स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करता है. some things किसी में बहुत हाई होती हैं, some are very anxious and some are very hyper. Absolutely. तो उनकी वो as organization उसको सकते इस्तेमाल करें. My rather than- ADHD, yes. people are like, you're so energetic Yes. on the stage. That's That's my because of this. ADHD. Yes. Actually, why do you have so much Even stamina? when Because you- खत्म ही नहीं होता even, energy. Zainab, when you talk about neurotypical people, even when you talk about But that's how I neurotypical make people- money. Yeah. Yes. So even when you talk about neurotypical people, उनमें भी strengths and weaknesses होती हैं. Yes, not just maybe mind related, neuro related नहीं होती, लेकिन weaknesses और strengths तो सब में होती हैं. There, as an organization, you're using those strengths and developing on those weaknesses. Absolutely, And yeah. here comes the point, जब neurodiverse population आपके पास है, तो why not fix our resources in the organization and help them like take advantage of their any strength that they have as an ADHD Their or competencies. in their competencies, इस पे whatever मैं they एक have. केस जरूर बताना चाहती हूँ, बिकॉज आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि यू हैव टू क्रिएट द वर्ल्ड अराउंड इट. लोगों को लगता है बहुत महंगा है ये वाला एक्टिविटी, ऐसा कोई सीन नहीं है. मैंने एक प्रोजेक्ट किया था इंटरलूप के साथ. इंटरलूप इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू DI इन पाकिस्तान. सो उन्होंने बुलाया था कि हमने कुछ 13,000 people with persons with disability hire किया है. They included invisible disabilities along with it. But उनका सबसे जो बड़ा population था ना, was of blind people. अब आप blind लोगों को एक manufacturing concern में, आपका तो manufacturing concern आपको पता है कितनी सेफ्टी के इश्यूज हैं, और उसमें आप ब्लाइंड लोगों को लेकर आ रहे हैं उस एक स्पेस के अंदर. व्हाट डिड दे डू? सो व्हाट डिड दे डू? उनको मैंने सजेस्ट किया था कि चेकोस्लोवाकिया में World War II के बाद मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वेंट ब्लाइंड आफ्टर द वॉर. ओके, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रेल दीवारों पे, सड़कों पे, हर कोने में, पोलों पे, हर चीज़ पे ब्रेल लगा दी. सो अ ब्लाइंड पर्सन कुड वॉक अराउंड चेकोस्लोवाकिया टिल टुडे विदाउट अ केन. यू डोंट नीड इट. ब्रेल हर जगह है. मैंने उनको सजेस्ट किया, उन्होंने पूरे कंपाउंड 38,000 लोगों का, दे टर्न्ड इट अराउंड, दे जस्ट पुट ब्रेल एवरीवेयर. सो यू गो, you'll see it everywhere. So as an organization, you need to see के opportunities कहाँ create कर सकते हैं, and it's not always costly. So हर जगह एक organization रैंप लगाने से a कितना ही person है who is, जिसके घुटनों के इश्यूज हैं, अभी एक हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट लास्ट ईयर, वेरी इंटरेस्टिंग. रैंप उन्होंने लगाया था विद देयर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बड़े पढ़े हुए थे, कॉस्ट है ये वगैरह. उसके अगले महीने सबको चिकनगुनिया हो गया. अब सब उस रैंप को इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, जस्ट टू गेट कम एंड गो फ्रॉम प्लेसेस. ऑलराइट, सो या सो एक आप जब किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं ना, सबके लिए आसानी पैदा होती है. राइट, दैट्स हाउ आई फील. जहाँ you creating that inclusive environment, opportunities for them. There's also जहाँ हम literacy की बात करते हैं, तो organizations पे एक बहुत एक जिम्मेदारी आती है कि इसकी भी literacy दी जाए. बिल्कुल. There will be many, if you start asking within your own organizations today, बहुत सारे ऐसे parents होंगे जिनके बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी किस्म के neurodiverse होंगे, कोई ना कोई ऐसी उनमें होगी. And you will eventually get to know कि अच्छा हमारा ही employee और उसी का बच्चा जो है वो is maybe autistic or maybe any And it's ADHD very also. common now. It's very common now. Because हमारे यहाँ, as I said, cousin marriages has not reduced. It is a direct link to this situation. But हम ignore करते हैं इस चीज़ को. Ignore ना करें, अपने organization में इसको implement करें. Anything that you would like to add to this? इसमें Sorry. Continue, please continue. इसमें आई वुड से कि बहुत सारी आपकी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सैप है, EY है, माइक्रोसॉफ्ट है, फाइजर है, they've adopted alternate hiring techniques. They've adopted such mechanisms where you have screen dictators, people who are struggling and they are different, they are diverse, they're not deficient in any way. Yeah. सबसे पहले हमें अपनी सोच को सही करना है. जब हम ये समझ लेंगे ना कि ये हमसे कमतर नहीं है या हम इनसे आला नहीं है, that is the first difference. When I tell people कि I'm dyslexic, तो मुझे लोग कहते हैं, ओ तारे ज़मीन पर. And I'm just like, no, Because that that's the is only- not what it that's the is. only thing we right? know. So, just understanding that. ना? देखिए, आपने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूछा कि किस किस को मालूम है कि न्यूरो डाइवर्सिटी होता क्या है. First we need to understand that these people are as normal as us.
हमारी कुछ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी डिफरेंट हैं. ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट से आप बात करें तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, तो डेफिनेटली लोकल भी कर सकती हैं. और again, मुश्किल ही नहीं है. टेक इंडस्ट्री में स्पेशली द IT firms, they are having a lot of neurodivergent employees. One, because of their coding skills, they have great hyper focus and they are very good in pattern recognition. Yes. So आप देखें हमारी जो tech industry है, that actually prefers having neurodivergent people. And I'm sure Netflix हर कोई देखता है, गुड डॉक्टर हर किसी ने देखा है, शॉन मर्फी सबका फेवरेट है, ही इज ऑटिस्टिक, ही इज नथिंग लेस देन एनीबडी एल्स. सो व्हाट वी नीड टू डू इज दिस. आई अंडरस्टैंड हम हर चीज़ में बोल रहे हैं, हम आवाम को भाषण देकर ना एजुकेट करें, डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी पे करें, फाइनेंशियल लिटरेसी पे करें, ट्रेनिंग्स करा दें, सब करा दें. We have a responsibility to ourselves as well. Yeah. हमने अपने लिए खुद भी तो कुछ करना है, सब कुछ कंपनी ने नहीं करवाना है. So we Very also true. need to educate ourselves about all these issues which are very genuine, which are around us. And then share it with each other. Yeah. Like I go to places and I make sure to spark the conversation. बात तो करें and you'll be surprised how many people are ready to talk about it. मुझे सालों से क्या बताया गया, ज़ैनब domestic violence के बारे में ना बात करो, there is no space. What did we do in February? 700 लोगों ने टैग किया था इस चीज को ऑन लिंक्डइन. A lot of work is being done in that domain 20 as दिन well. तक लोग बातें करते रहे डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी के बारे में. दैट वाज जस्ट वन कन्वर्सेशन. पीपल आर डाइंग टू टॉक, दे वांट टू टॉक. सो spark that conversation in your spaces in all of these three areas. Now moving forward from neurodiversity, I want to close this conversation with our favorite topic here at Path to Progress, and that is HR tech. Right, so हमने बहुत सारे अभी सेशंस किए हैं इस पूरे साल where we talked about AI, we talked about new technologies, legacy system से निकलना. थोड़ी देर पहले आपने एक ऐसी बात की थी जो मेरे दिल को बहुत like it just hit me right here, because आपने कहा था कि हम प्रेफर करते हैं लोकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना. Right. Okay, and that's a very powerful statement from somebody in the steel industry. Right. You know, so I would like you to tell us a little bit about that. Before going into this, I would like to take you to the journey. 10 years back जब मैंने इस organization को join किया, they have recently migrated from local ERP to this SAP. Yeah. और SAP के बाद फिर हमें एक performance management के लिए या HR का कोई हमें मॉड्यूल चाहिए था. So nearest map था SAP Success Factors, and it is, tell you, it's the most expensive module here. हमने जब उसको evaluate किया organization के अंदर पूरी after due diligence हम उसी पे चले गए. जो माइलेज हमें मिली ओवर द इयर्स वो बहुत अच्छी थी. एट एनी गिवन टाइम यू नो, चूँकि डॉलर पैरिटी की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से वो चीज़ें सस्टेनेबल भी नहीं हो रही थी. अच्छा, मीनवाइल आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो गियर अप हो रही है. सो उनके पास वो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली थे. सो व्हाई नॉट टू यू नो ट्राई दीज सिस्टम्स जो कि बहुत ऑनेस्टली बहुत ही कम कॉस्ट पे थे. डे एंड पे देखिए, हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मिसलीड करते हैं या मिस इंटरप्रिटेशंस होती हैं. टेक्नोलॉजी या स्क्रीन्स, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, वॉट एवर द कलर इज. डे एंड पे द डेटा मैटर्स, और डेटा एनालिटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको क्या वापस दे रहे हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी. और वो स्टीफन कवी, फ्रैंकलिन कवी, वो कहते हैं ना, बिगिन एंड इन माइंड. अगर आपको एंड का नहीं पता तो आप किस चीज़ की बात करें. आप सबसे पहले ये सोल्यूशन कि आप किस लिए ले रहे हैं. इतनी बड़ी डिबेट हम करें, क्या करने की क्या कोशिश करें. सो यू नो, वो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ना. वो आप लोग माशाल्लाह सारे समझदार हैं, आपने सुनी भी होगी. वो नासा के फ्लोर के ऊपर एक जैनिटर साफ कर रहा था, सारी सफाई वगैरह कर रहा था. सो एक बंदा आया कि व्हाट डू यू डू हियर. कहता, आई सेंड पीपल टू द स्पेस एंड मून. तुम भेजते हो. कहता, अगर मैं ये सफाई नहीं करूं तो कौन भेजेगा. सो लुक एट द कन्विक्शन कि यार मेरा, और ये है पर्पस. ये पर्पस है एक्चुअली. वी हैव टू फाइंड आउट द पर्पस के यू नो. उसमें टेड टॉक्स में बड़ी खूबसूरत उसने बात की. वो कहता है, इफ यू हैव पैशन फॉर एनीथिंग, मनी कम्स एनीवे, बट यू हैव टू परस्यू, यू हैव टू पर्पसली सी कि वो आज नहीं, कल नहीं, बट इट विल डेफिनेटली. सो टेक इंडस्ट्री और जो AI जो अभी तबाहियां होनी है, बट क्या करें. इंजीनियरिंग कभी नहीं जाएगी. इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, आपकी ये जो सर्विसेज हैं, यस, जो रिडंडेंट सर्विसेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. सो जो HR का जो रोड मैप या टेक्नोलॉजी का जो रोड मैप है ना, यू हैव टू फोकस कि जी आपकी रिडंडेंसीज कम होनी चाहिए.
सो रिडंडेंसीज कम होंगी तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी सिस्टम्स के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। वही जो आप मतलब एक काम 4 बंदे कर रहे हैं और लेगेसी सिस्टम यही करते हैं कि एक बंदा है और उसके नीचे 2 बंदे और हैं, 3 बंदे और, डजंट मैटर, इट्स पॉसिबल, बट उसकी आइडेंटिफिकेशन इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी क्लियर ट्रांसपेरेंट सिस्टम। जब आप लोगों को सिर्फ उठा के इधर से उधर कर देते हैं ना तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। शो देम द थोड़ा वे, सा हाथ पकड़ के जी लेकर उंगली चलना पकड़ के पड़ता है। चलाना पड़ेगा। And I feel like that is where the disconnect is. अच्छा, एचआर का सॉरी यहाँ पे ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है ना वो तबलीग वाला है। एचआर हैज टू कीप ऑन ट्राइंग, बताना बहुत जरूरी है। एक आपने शायद एक और एग्जांपल बड़ी मजे की सुनी होगी। एक साहब देखते हैं कि एक समंदर पे एक बच्चा खड़ा हुआ है और वो बहुत सारी मछलियां आती हैं और बाहर आ रही हैं और मर रही हैं। वो एक को उठाता है, फेंक देता है, 25 आ रही हैं और एक को फेंक पा रहा है। वो आया, उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग बॉय, क्या फायदा? उठाता है, इसको फायदा है कि जिसको मैं उठा के वापस फेंक रहा हूँ ये जिंदा रहेगी। सो यू नो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। यस, कि So मैं purpose है, आपका एक के intention लिए भी है। कुछ कर सकूंगा, मैं मुझे नहीं सारी दुनिया के लिए करना, बट कैन आई डू समथिंग फॉर एनीबडी। नफीसा के लिए कुछ कर सकूंगा, मिस हेना के लिए कुछ कर सकूंगा, किसी के लिए कुछ कर सकेंगे हम। सो दैट्स द की। अगर वो हम किसी एक की उंगली पकड़ के कहीं तक पहुंचा दें, वो तारे जमी पर थी, अब वो सितारे जमी पर हो गई ऐसे। सो एक और उसका लेवल आ गया। अब उसके बाद पता नहीं, अब शायद चांद, उसके बाद क्या आएगा। You have described कि जो best CEOs है पाकिस्तान में, I'll give you one of the best CEOs in Pakistan, president है आतिफ बाजवा साहब, ये बैंक अल-फलाह के है। He turned around बैंक अल-फलाह before, left, came back, turned it around again, pushed it from like a second tier bank into one of the biggest banks, and leadership उनकी empathy based है, purely empathy based leadership उनकी, and it's incredible, a man of his level के एक मैं I still remember there was a small case कि किसी सखर के अंदर, एक ब्रांच के अंदर किसी लड़के ने किसी लड़की को जप्पी मार दी। दोनों ने कंप्लेन नहीं किया मगर उनके पास पहुंचा and he took it forward. He was like, is she fine? Is she okay? अब वो लड़की कह रही है भाई कुछ भी नहीं है, दोस्त है भाई, leave him alone, right? Like, and he's like, no, are you okay? Are you safe? So yeah, ये क्योंकि he is a leader who जिनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि दिस इज माई कंपनी एंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक अल-फलाह को हम बहुत रिगार्ड करते हैं इसीलिए बिकॉज उनकी बहुत ही एक फीमेल फ्रेंडली और एक फ्लेक्सिबल उन्होंने इन्वायरमेंट वो क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर होता है ना कि फीमेल्स आर लाइक रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स वन ऑफ दोज प्लेसेस। So I see how you've tied this into the technology वाला conversation कि अगर आप वो implement भी करें like financial literacy, आपने हाथ पकड़ के करना, एक proper process arrange करना, SOPs protocols बहुत clearly लेके जाना है आपने। ये हबड़ दबड़ में एकदम से एक प्रोग्राम नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, डेडलाइंस डाल देते हैं, डेडलाइंस के चक्कर में अच्छे, और अगेन we are a very tangible com, जो दिखता है वो उसी को हम वी टेक इट या सो इसमें ना थोड़ा एक चेकलिस्ट से आगे बढ़ना है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है ना कि देखिए प्रेशर्स तो रहेंगे, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन उसके अपने एक टारगेट्स हैं, तो यू नो वी हैव टू फॉलो, डिसिप्लिन तो होना होगा। तो इसलिए यस, एम्पैथी अगर आ जाए तो नथिंग लाइक इट। वो आप मतलब किसी को आप कैटलिस्ट वाला रोल करेंगे ना, लेके चलेंगे तो यू नो थिंग्स विल बी मोर इजियर। हम अंडरस्टैंड ये कर रहे होते कि नफीसा को पता लग जाएगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली द बैड थिंग। वो कहते हैं प्रॉब्लम रिमेन्स अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट सी इट कमिंग, राइट? तो जब आपको पता है कि ये होना है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे जाके थोड़ा सा ऑपरेट करने की कोशिश करें तो शायद जिंदगी आसान हो जाएगी। Absolutely, and you're right. So a lot of everything that we've talked about has its basis in social conditioning. अगर देखा जाए, all 4 topics, 4 totally different areas. Why? Because the human in HR is something we cannot move away from. That will always stay. कितनी भी टेक्नोलॉजी आप ऐड करें, कितने भी आप लोगों को रिप्लेस करें, कितना भी कुछ कर लें, the human is very important, and given that way our humanity is also very important in all of this. Thank you everyone for being part of this incredible session. आप लोग आए all the way in Ramzan. I hope you all had fun because this was a very good session. मुझे बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके, and to get all these different tidbits and different perspectives, that is exactly what we need. And हमारे मुफ्त का आज financial literacy का session भी हो गया in the inside this. So this is an all-in-one session for all of you. And thank you so much, Ibrahim. Thank you so much, Hassan, for making this happen again and again. And I hope we can create even more impact in the HR space.